السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مکتب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے صفت استطالت کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں ہم نے حرف حافیہ غود کے بارے میں پڑھا تھا، تو مجھے امید ہے کہ اس کلاس کو آپ نے پورا دیکھا بھی ہوگا اور پورا سمجھا بھی ہوگا۔ تو آج کی کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں صفت قلقلہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صفت قلقلہ کو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ صفت قلقلہ کو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، اور صفت قلقلہ کے اندر ہم نے 3 اقسام پڑھی تھی۔ صفت قلقلہ کی ہم نے 3 اقسام پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج ہم صفت قلقلہ کی 3 اقسام کو انشاءاللہ دوبارہ دہرانے والے ہیں اور ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفت قلقلہ کی 3 اقسام، ٹھیک ہے۔ صفت قلقلہ کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 پر ہے قلقلہ صغرا، ٹھیک ہے، قلقلہ صغرا۔ اب اس کو ہم قلقلہ صغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پر ہے قلقلہ کبریٰ، ٹھیک ہے، قلقلہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو قلقلہ کبیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قلقلہ کبیرہ، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 پر ہے قلقلہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب قلقلہ صغرا، جیسے ہم کہتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ٹھیک ہے۔ تو صغیرہ کسے کہتے ہیں؟ صغیرہ یعنی چھوٹے، ٹھیک ہے، چھوٹا۔ اور کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ یعنی بڑا۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہم ایسے کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر صغرا یا صغیرہ یعنی چھوٹے، صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے کو، اور کبیرہ کہتے ہیں بڑے کو، ٹھیک ہے۔ تو کبریٰ یعنی بڑا۔ نمبر 3 پر ہے قلقلہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو اب اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اکبر کہتے ہیں بڑے قلقلہ کو، ٹھیک ہے۔ قلقلہ اکبر یعنی سب سے بڑا قلقلہ، ٹھیک ہے۔ قلقلہ صغیرہ یعنی چھوٹا قلقلہ، ٹھیک ہے، صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے کو، اور قلقلہ کبریٰ یعنی بڑا قلقلہ، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے چھوٹا قلقلہ، اس کے بعد بڑا قلقلہ، پھر اس کے بعد قلقلہ اکبر یعنی قلقلہ کبیرہ سے بھی بڑا قلقلہ، قلقلہ اکبر یعنی سب سے بڑا قلقلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس معنی میں ہے۔ تو صفت قلقلہ کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 پر ہے قلقلہ صغرا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پر قلقلہ کبریٰ، اور نمبر 3 پر قلقلہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفت قلقلہ کی 3 اقسام ہیں۔ آج ہم ان صفت قلقلہ کی 3 اقسام کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ صفت قلقلہ کا ہم نے لغوی معنی کیا پڑھا تھا کہ جنبش، ٹھیک ہے۔ صفت قلقلہ کا ہم نے لغوی معنی کیا پڑھا تھا؟ جنبش، ٹھیک ہے، لغوی معنی پڑھا تھا جنبش۔ اب جنبش کسے کہا جاتا ہے؟ جنبش کہتے ہیں ہلنے ڈلنے کو، حرکت کرنے کو، ٹھیک ہے۔ جیسے میرا ہاتھ ہے، یہ حرکت کر رہا ہے، ہل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، تو جنبش کہتے ہیں ہلنے کو، ڈلنے کو، حرکت کرنے کو، ٹھیک ہے۔ تو صفت قلقلہ کا ہم نے اصطلاحی معنی کیا پڑھا تھا کہ حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہونا، حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہونا، اصطلاحی معنی، صفت قلقلہ کا اصطلاحی معنی، اصطلاحی معنی، حرف کو ادا کرتے وقت، حرف کو ادا کرتے وقت صفت قلقلہ کا اصطلاحی معنی ہے حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہونا، ٹھیک ہے، حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہونا یا مخرج میں حرکت ہونا، ٹھیک ہے۔ اب جنبش کہتے ہیں حرکت کو، ہلنے ڈلنے کو، ٹھیک ہے۔ حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہونا یا حرکت ہونا، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ کہتے ہیں۔ اور ہم نے صفت قلقلہ کی ادائیگی کیا پڑھی تھی؟ حروف قلقلہ کو ادا کرتے وقت ان کی مخرج میں جنبش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حروف قلقلہ کو ادا کرتے وقت ان کی مخرج میں جنبش ہونا، ٹھیک ہے، یہ صفت قلقلہ کی ادائیگی ہے، ٹھیک ہے، یہ صفت قلقلہ کی ادائیگی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے صفت قلقلہ کی 3 اقسام میں سے قلقلہ صغرا کو، ٹھیک ہے،
कलकला की 3 अक़साम है ना, कलकला सग़रा, कलकला कुबरा, तीसरा कलकला अकबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलकला सग़रा को। ठीक है, ये नहीं छोटा कलकला। ठीक है, तो पहले सिफ़त कलकला की 3 अक़साम में से सिफ़त सग़रा को पढ़ते हैं, उसके बाद हम सिफ़त कबीरा को पढ़ेंगे, उसके बाद हम कलकला अकबर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिफ़त सग़रा को। तो कलकला सग़रा का जो कायदा है उसको लिख लेते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। ठीक है, तो ये है कलकला सग़रा का कायदा। ठीक है, कलकला का हरफ लफ्ज़ के बीच में आ जाए। ठीक है, कलकला का हरफ लफ्ज़ के बीच में आ जाए और वो साकिन हो, यानी उसके ऊपर सुकून असली बिल जज़म हो। ठीक है, यानी वो साकिन हो, उसके ऊपर जज़म सुकून हो। ठीक है, तो वहाँ पर जो कलकला होगा वो कौन सा कलकला होगा? वो कलकला सग़रा होगा, यानी छोटा कलकला होगा। ठीक है, तो हुरूफ कलकला कितने हैं? हुरूफ कलकला 5 हैं। ठीक, हुरूफ कलकला 5 है। क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल। ठीक है, ये हुरूफ कलकला हैं, ये 5 हैं। इन 5 हुरूफ कलकला कहा जाता है। ठीक है, हुरूफ कलकला। ठीक है, पिछली क्लास में हमने सिफ़त कलकला पढ़ी थी, उसके अंदर हमने डिटेल के साथ इन हुरूफ कलकला को पढ़ा था और सिफ़त कलकला की 3 अक़साम हमने पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन आज हम फिर सिफ़त कलकला की 3 अक़साम को डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और पढ़ रहे हैं। तो सिफ़त कलकला की 3 अक़साम हैं, जिसमें से पहली किस्म ये है कलकला सग़रा, यानी छोटा कलकला। तो कलकला सग़रा, कलकला का हरफ लफ्ज़ के बीच में आ जाए, कलकला का हरफ लफ्ज़ के बीच में आ जाए और वो साकिन हो। ठीक है, और वो साकिन हो, यानी उसके ऊपर सुकून असली बिल जज़म हो। ठीक है, यानी उसके ऊपर सुकून असली हो, सुकून जज़म सुकून हो। ठीक है, तो वहाँ पर जो कलकला होगा वो कलकला कौन सा होगा? वो कलकला सग़रा होगा, यानी छोटा कलकला होगा। ठीक है, यानी ये हुरूफ कलकला है, इनके ऊपर जज़म सुकून हो। ठीक है, पहले से ही साकिन हो, पहले से इनके ऊपर जज़म सुकून हो, सुकून असली बिल जज़म हो। ठीक है, कलकला का हरफ लफ्ज़ के बीच में आ जाए और वो साकिन हो। ठीक है, उसके ऊपर सुकून असली बिल जज़म हो। ठीक है, अब देखें हुरूफ कलकला ये 5 हैं जो कि साकिन है, जिनके ऊपर जज़म सुकून है। ठीक है, अब ये हुरूफ कलकला जब लफ्ज़ के बीच में आएंगे और उनके ऊपर सुकून असली बिल जज़म होगी, यानी ये साकिन होंगे। ठीक है, अब इन पर जो कलकला होगा वो कलकला सग़रा होगा, यानी छोटा कलकला होगा। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हुरूफ कलकला की मश्क़। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम क़ाफ़ को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर भी कलकला कर सकते हैं। ठीक है, क़ाफ़ साकिन है। ठीक है, अब कलकला से पहले क्या है? हमज़ा मुतहर्रिक है। ठीक है, अब हमज़ा को हम क़ाफ़ के साथ मिलाएंगे, तो अब हम यहाँ पर भी इन पर कलकला कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हुरूफ कलकला 5 हैं और ये साकिन हैं। ठीक है, एक और बात है, इन हुरूफ कलकला पर कलकला कब होता है? ठीक है, ये सवाल है कि ये जो हुरूफ कलकला, ये हुरूफ कलकला 5 हैं, इनके अंदर सिफ़त कलकला पाई जाती है हमेशा। ठीक है, अभी जो हुरूफ कलकला 5 हैं, इन हुरूफ कलकला पर कलकला कब होगा, ये सवाल है। तो याद रखिए, जब ये हुरूफ साकिन हो, जब ये हुरूफ साकिन हो तो उन पर कलकला होगा। ठीक है, जैसे ये हुरूफ कलकला साकिन है, इनके पर जज़म सुकून है, सुकून असली बिल जज़म है। ठीक है, तो सिफ़त कलकला, कलकला सग़रा का कायदा क्या है कि कलकला का हरफ लफ्ज़ के बीच में आ जाए। ठीक है, और उसके ऊपर सुकून असली बिल जज़म हो, वो साकिन हो, तो वहाँ पर जो कलकला होगा वो कलकला सग़रा होगा, यानी छोटा कलकला होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हुरूफ कलकला जो हैं वो साकिन है, उनके ऊपर जज़म सुकून है, वो साकिन है। ठीक है, अब इनको हम यहाँ पर भी कलकला कर सकते हैं। ठीक है, अब इन पर हम यहाँ पर भी कलकला कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हुरूफ कलकला ये साकिन है, इनसे पहले वाले हरफ को मुतारिक लाएंगे, फिर उनको मिलाकर पढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे हम क़ाफ़ ज़बर अक़, अक़। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर कलकला हो रहा है, ये कलकला सग़रा है, छोटा कलकला है। ठीक है, अक़, अक़। ठीक है, हमज़ा ज़बर अतो,
अतो, ठीक है। अब ये तो पर क्या हो रहा है, कलकला हो रहा है, ठीक है। ये तो साकिन है और उसके ऊपर सुकून असली बिल जज़म है, ठीक है। अब जो यहाँ पर तो पर कलकला हो रहा है वो कलकला है सुगरा है, ये छोटा कलकला है, ठीक है। हमज़ा ब ज़बर अब, हमज़ा ब ज़बर अब, अब 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 ये कलकला हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बा जो है वो साकिन है। कलकला का हरफ लफ्ज़ के बीच में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर तो आखिर में है, यहाँ पर तो साकिन है ना, और आखिर में भी है और साकिन भी है, ठीक है। तो हरफ कलकला जब साकिन होते हैं तब इन पर कलकला होता है, ठीक है। यानी इनके ऊपर सुकून असली बिल जज़म होगी, सुकून असली होगा, जज़म होगी तो उन पर कलकला होगा, ठीक है। कलकला का हरफ लफ्ज़ के बीच में आ जाए और वो साकिन हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साकिन है, ठीक है। तो वहाँ पर जो कलकला होगा वो कलकला सुगरा होगा, छोटा कलकला होगा, ठीक है। अब अब ब ये कलकला है। हमज़ा जीम ज़बर अज, अज अब ज ये जुम्बिश है, ठीक है, इसको कहते हैं कलकला, ठीक है। अक़ 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 ये इसकी मखरज में क्या हो रहा है कि जुम्बिश हो रही है, हरकत हो रही है, तो ये कलकला है। अक़ अक़ आतो आतो, ठीक है, तो ये जुम्बिश है, ये कलकला है। अब, ठीक है। हमज़ा जीम ज़बर अज, अज, ठीक है। हमज़ा दाल ज़बर अद, अद, ठीक है, तो ये कलकला है, ठीक है। ये हुरूफ कलकला 5 हैं। जब ये हुरूफ साकिन होंगे इनके ऊपर सुकून असली बिल जज़म होगी, ठीक है। तो इन पर जो कलकला होगा वो कलकला सुगरा होगा, यानी छोटा कलकला होगा, ठीक है। तो अब इन पर हमने यहाँ पर भी कलकला किया, ठीक है। तो ये हुरूफ कलकला अभी यहाँ पर भी साकिन है, यहाँ पर भी हमने इन पर कलकला किया, ठीक है। हुरूफ कलकला 5 हैं। जब ये हुरूफ साकिन होंगे तो उन पर कलकला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने इनके ऊपर जज़म सुकून डाली और उनसे पहले वाला हरफ हमने मुतहरिक लाया और हमने कलकला किया, ठीक है। अब हम कुरान से मिसालें लेते हैं, जैसे क़ाफ की मिसाल है फ़क़्तुलू, फ़क़ फ़क़ ज़बर फ़क़। तो अब यहाँ पर देखो क़ाफ जो है वो हुरूफ कलकला में से है, वो हरफ के बीच में है, ठीक है। कलकला का हरफ लफ्ज़ के बीच में हो, ठीक है, और वो साकिन हो, ठीक है। फ़क़्तुलू, ठीक है। कलकला का हरफ जो है वो लफ्ज़ के बीच में है और वो साकिन है। अब यहाँ पर जो कलकला होगा वो कलकला सुगरा होगा, यानी छोटा कलकला होगा, ठीक है। फ़क़ फ़क़ फ़क़्तुलू, फ़क़्तुलू, ठीक है। फ़क़्तुलू। अब यहाँ पर जो कलकला होगा वो कलकला सुगरा होगा, यानी छोटा कलकला होगा, ठीक है। फ़क़्तुलू मिन क़ब्लि, मिन क़ब्लि, ठीक है। बा की मिसाल है मिन क़ब्ल, यहाँ पर नून साकिन का इक़फ़ा मअल गुन्ना का कायदा है, ठीक है। यहाँ पर हम नून साकिन को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, ठीक है। मिन क़ब्लि, क़ब क़ब, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बा है, कलकला का हरफ लफ्ज़ के बीच में है, ठीक है। बा जो है वो कलकला का हरफ है, वो लफ्ज़ के बीच में है और वो साकिन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कलकला होगा वो कौन सा कलकला होगा, वो कलकला सगीरा होगा, यानी छोटा कलकला होगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे मिन क़ब्लि, क़ब क़ब, ठीक है। क़ाफ बा ज़बर क़ब क़ब, ठीक है। तो अब यहाँ पर बा पर कलकला हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कलकला का हरफ जो है वो लफ्ज़ के बीच में है और वो साकिन है। अब यहाँ पर जो कलकला होगा वो कलकला सगीरा होगा, ये छोटा कलकला होगा, ठीक है। क़ब्लि क़ब क़ब क़ब, ठीक है। मिन क़ब्लि, ठीक है। और नून साकिन को हम नाक के अंदर छुपा कर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ इक़फ़ा के 15 हुरूफ में से क़ाफ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इक़फ़ा मअल गुन्ना करेंगे, ठीक है। मिन क़ब्लि, मिन क़ब्लि क़ब्लि, ठीक है। और मिन नुतफ़तिन, ठीक है। मिन नुतो, तो अब यहाँ पर भी देखिए नून साकिन है, नून साकिन के बाद यमनों की 4 में से नून है और तो जो है वो साकिन है, ठीक है। नून तो पेश नोतो, ठीक है। मिन नुतफ़तिन, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें कलकला का हरफ जो है वो लफ्ज़ के बीच में है, ठीक है। कलकला का हरफ लफ्ज़ के बीच में है और वो साकिन है, उसके ऊपर सुकून असली बिल जज़म है,
ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ صغیرہ ہوگا یعنی چھوٹا قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم پڑھیں گے من نطفۃ. ٹھیک ہے. من نطفۃ. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر نون ساکن کے بعد یمنو کے چار میں سے نون ہے تو ہم یہاں پر نون ساکن کا ادغام مع الغنہ کا پیدا بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اور نون جو ہے وہ نون کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، مرج ہو جائے گا، مل جائے گا. ٹھیک ہے. من نطفۃ. ٹھیک ہے. اور تو پر قلقلہ ہوگا. تو یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ صغیرہ ہوگا یعنی چھوٹا قلقلہ ہوگا. تو بہت ساری مثالیں ہیں قرآن کے اندر جہاں پر حروف قلقلہ جو ہوتے ہیں وہ ساکن ہوتے ہیں، ان کے اوپر جزم سکون ہوتی ہے. تو وہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ صغرا ہوگا یعنی چھوٹا قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے تجری، تجیم زبر تجری، تج تو جیم کی مثال ہے تجری. اب جیم جو ہے قلقلہ کا حرف ہے، وہ لفظ کے بیچ میں ہے اور وہ ساکن ہے، اس کے اوپر جزم سکون ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو قلقلہ ہو رہا ہے وہ قلقلہ صغرا ہے یعنی چھوٹا قلقلہ ہے. تجری، تج تجیم زبر تج، تجری، تجری. ٹھیک ہے. جب یہ حروف ساکن ہوں گے تو ان پر قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو کون سا قلقلہ ہوگا؟ قلقلہ صغرا ہوگا یعنی چھوٹا قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے قرآن کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں. بطش، بطش. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی تو جو ہے وہ حرف قلقلہ کا حرف ہے، وہ لفظ کے بیچ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. حروف قلقلہ میں سے ہے، وہ لفظ کے بیچ میں ہے اور وہ ساکن ہے، اس کے اوپر سکون اصلی بالجزم ہے. تو یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ صغرا ہوگا یعنی چھوٹا قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں ان بطش ربک لشدید. ٹھیک ہے. ان بطش بطش ان بطش ربک لشدید. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قلقلہ کا حرف ہے، وہ لفظ کے بیچ میں ہے اور وہ ساکن ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ صغرا ہوگا یعنی چھوٹا قلقلہ ہوگا. تجری، تج تجری، ج یہ قلقلہ ہے جنبش ہے. تج تجری. ٹھیک ہے. یدعو، ید یدال زبر ید، یدعو، یدعو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ دال جو ہے وہ ساکن ہے، اس کے اوپر جزم سکون ہے. قلقلہ کا حرف ہے، لفظ کے بیچ میں ہے اور وہ ساکن ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو قلقلہ ہوگا قلقلہ صغرا ہوگا یعنی چھوٹا قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ حروف قلقلہ 5 ہیں. جب یہ حروف ساکن ہوں گی ان کے اوپر سکون اصلی بالجزم ہوگی تو ان پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ صغرا ہوگا یعنی چھوٹا قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ صفت قلقلہ کی پہلی قسم ہے. ٹھیک ہے. قلقلہ صغرا. اب ہم پڑھتے ہیں قلقلہ کبیرہ کو یعنی صفت قلقلہ کی دوسری قسم جو ہے قلقلہ کبیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ صفت قلقلہ کی پہلی قسم تھی قلقلہ صغرا. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں صفت قلقلہ کی دوسری قسم قلقلہ کبیرہ. ٹھیک ہے. تو اس قاعدے کو بھی لکھ لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو صفت قلقلہ کی دوسری قسم قلقلہ کبیرہ. ٹھیک ہے. یا قلقلہ کبریٰ. ٹھیک ہے. اب قلقلہ کبیرہ کہتے ہیں بڑے قلقلہ کو. ٹھیک ہے. بڑا والا قلقلہ. ٹھیک ہے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ قلقلہ کا حرف لفظ کے آخر میں ہو. قلقلہ کا حرف لفظ کے آخر میں ہو، سب سے آخر میں ہو. ٹھیک ہے. اور وہ وقف کی وجہ سے کیا ہو رہا ہو؟ ساکن ہو. ٹھیک ہے. وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو وہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ کبیرہ ہوگا یعنی بڑا والا قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب قلقلہ کا حرف لفظ کے آخر میں ہو اور وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. یعنی اس کے اوپر جو حرکت ہوگی، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش ہوگی یا دو زیر ہوگی یا دو پیش والی تنوین ہوگی تو وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب وہاں پر جو قلقلہ ہوگا قلقلہ کبیرہ ہوگا یعنی بڑا والا قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے خلق، خلق. ٹھیک ہے. تو لفظ کا آخر کون سا ہے؟ قاف ہے. قاف حروف قلقلہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. قاف، قاف، طا، با، جیم. ٹھیک ہے. دال. ٹھیک ہے. تو قاف کی مثال ہے. لفظ کا آخر کون سا ہے؟ قاف ہے. خلق، خلق، ٹھیک ہے. خلق. ٹھیک ہے. تو لفظ کا آخر قاف ہے، اس کے اوپر زبر ہے اور وہ کیا ہے؟ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. قلقلہ کا حرف ہے اور لفظ کے آخر میں ہے اور وقف کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ساکن ہو رہا ہے. تو اب یہاں پر جو قلقلہ ہوگا قلقلہ
कबीरा होगा यानी बड़ा वाला कलकला होगा। ठीक है, जैसे खलक वक्फन खलक खलक, ठीक है, खलक q q q, ठीक है, तो ये जुम्बिश हो रही है, कलकला हो रहा है q खलक। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कलकला हो रहा है वो कलकला कबीरा हो रहा है यानी बड़ा वाला कलकला हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लफ्ज़ का आखिरी हरूफ कलकला है और वो वक़्फ़ की वजह से साकिन हो रहा है। ठीक है, तो अब लफ्ज़ का आखिरी जब कौफ है वो बहालत वक्त में साकिन है, अब इस पर जो कलकला होगा वो कलकला कबीरा होगा। ठीक है, कलकला कुबरा यानी बड़ा वाला कलकला। ठीक है, जैसे खलक वक्फन खलक खलक वक्फन खलक। ठीक है, मिन अलक़िन मिन, यहाँ पर नून साकिन का इज़हार का कायदा है, इज़हार हल्क़ी है। ठीक है, नून साकिन के बाद हरूफ हल्क़ी के चेहरे में से आइन है, तो हम यहाँ पर इज़हार करेंगे, नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। ठीक है, मिन अलक़िन मिन अलक़िन, तो अब यहाँ पर बात है लफ्ज़ के आखिरी रफ़ की। ठीक है, लफ्ज़ का आखिरी रफ़ जो है वो क़ाफ़ है। ठीक है, कलकला का हरफ लफ्ज़ के आखिर में हो और वो वक़्फ़ की वजह से साकिन हो रहा हो। ठीक है, तो वहाँ पर जो कलकला होगा कलकला कुबरा होगा यानी सबसे बड़ा वाला कलकला होगा। ठीक है, जैसे मिन अलक़िन वक़्फ़न मिन अलक़ मिन अलक़। ठीक है, मिन अलक़िन वक़्फ़न मिन अलक़ मिन अलक़। ठीक है, तो लफ्ज़ का आखिरी हरूफ कलकला हो और वो लफ्ज़ के आखिर में हो और वक़्फ़ की वजह से साकिन हो रहा हो। ठीक है, यानी उसके ऊपर जो भी हरकत होगी वो वक़्फ़ की वजह से साकिन हो जाएगी। ठीक है, वक़्फ़ की वजह से साकिन हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर जो कलकला होगा वो कलकला कुबरा होगा यानी बड़ा कलकला होगा। ठीक है, तो ये क़ाफ़ की मिसाल है मिन अलक़। ठीक है, फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, लफ्ज़ का आखिरी क़ाफ़ है। ठीक है, तो उस पर जो हरकत है वो वक़्फ़ की वजह से साकिन हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कलकला वो कलकला कुबरा होगा यानी बड़ा कलकला होगा। ठीक है, जैसे फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। ठीक है, फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। ठीक है, कलकला कुबरा यानी बड़ा कलकला। ठीक है, फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। ठीक है, तो लफ्ज़ का आखिरी क़ाफ़ है वो वक़्फ़ की वजह से साकिन हो रहा है, तो अब यहाँ पर जो कलकला होगा कलकला कुबरा होगा यानी बड़ा कलकला होगा। तो कुरान के अंदर बहुत सारी मिसालें आपको इंशाअल्लाह मिल जाएंगी जहाँ पर लफ्ज़ के आखिरी हरूफ कलकला होंगी और वो वक़्फ़ की वजह से साकिन हो रहे होंगे, और वहाँ पर जो कलकला होगा वो कलकला कुबरा होगा यानी बड़ा वाला कलकला होगा। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं सूरह इखलास में है कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है, अहद अहद। ठीक है, तो अहद यहाँ पर क्या लफ्ज़ का आखिरी दाल है और उसके ऊपर क्या है जो भी हरकत है वक़्फ़ की वजह से साकिन हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कलकला वो कलकला कुबरा होगा यानी बड़ा वाला कलकला होगा। ठीक है, अल्लाहु समद। ठीक है, अल्लाहु समद अल्लाहु समद समद। ठीक है, तो यहाँ पर लफ्ज़ का आखिरी दाल है। ठीक है, वो वक़्फ़ की वजह से साकिन हो रहा है। ठीक है, उस पर तो वक़्फ़ की वजह से साकिन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कलकला वो कलकला कुबरा होगा यानी बड़ा वाला कलकला होगा। अमशाजिन। ठीक है, वक़फ़न अमशाज अमशाज। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि कलकला का हरफ है जीम। ठीक है, जीम जो है वो कलकला का हरफ है और लफ्ज़ के आखिर में है और वक़्फ़ की वजह से साकिन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कलकला होगा कलकला कुबरा होगा यानी बड़ा वाला कलकला होगा। ठीक है, जैसे अमशाजिन वक़फ़न अमशाज अमशाज। ठीक है, अल्लाहु समद। ठीक है, लफ्ज़ का आखिरी दाल है और इस कलकला में से है। ठीक है, और वक़्फ़ की वजह से साकिन हो रहा है, तो अब यहाँ पर जो कलकला वो कलकला कुबरा होगा यानी बड़ा वाला कलकला होगा। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद द। ठीक है, लशदीद लशदीद द लशदीद। ठीक है, लफ्ज़ का आखिरी दाल है और वक़्फ़ की वजह से क्या हो रहा है साकिन हो रहा है लशदीद लशदीद। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कलकला होगा वो कलकला कुबरा होगा यानी बड़ा वाला
कलकला होगा। तो ऐसे बहुत सारी मिसालें आपको कुरान के अंदर मिल जाएंगी जहाँ पर लफ्ज़ के आखिरी हरफ जो होंगी ये हुरूफ कलकला होंगे, ठीक है। वहाँ पर लफ्ज़ का आखिरी हरफ जो का हुरूफ कलकला होगा और वो वक़्फ़ की वजह से साकिन हो रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो कलकला होगा वो कलकला कुबरा होगा, यानी बड़ा वाला कलकला होगा, ठीक है। तो ये सफ़द कलकला की दूसरी किस्म थी, कलकला कबीरा या कलकला कुबरा, ठीक है। अब कलकला कबीरा कब होगा, ठीक है, जहाँ पर भी लफ्ज़ की आखिरी हरफ कुरान के अंदर जहाँ पर भी लफ्ज़ के आखिरी हरफ हुरूफ कलकला होंगे, ठीक है, हुरूफ कलकला होंगी और वक़्फ़ की वजह से साकिन हो रहे होंगे, ठीक है, यानी उनके ऊपर जो भी हरकत होगी दो ज़बर वाले तनवीन होंगी तो वो अलिफ मद्दा हो जाएंगे, ठीक है। दो ज़बर वाले तनवीन को बाल के वक़्फ़ में अलिफ मद्दा से बदल देंगे, ठीक है। लेकिन दो ज़बर के अलावा दो ज़बर वाले तनवीन के अलावा जो भी हरकत होगी वो वक़्फ़ की वजह से साकिन हो जाएगी, ठीक है। तो बहालत वक़्फ़ में वो साकिन हो जाएंगे हुरूफ कलकला, ठीक है। तो अब वहाँ पर जो कलकला होगा वो कलकला कुबरा होगा, यानी बड़ा वाला कलकला होगा, ठीक है। तो ये सफ़द कलकला की दूसरी किस्म थी कलकला कबीरा। तो अब हम पढ़ते हैं सफ़द कलकला की तीसरी किस्म कलकला अकबर, ठीक है। तो उसके कायदे को लिख लेते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए और आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। सफ़द कलकला की तीसरी किस्म कलकला अकबर, ठीक है, यानी बड़ा वाला कलकला, ठीक है। कलकला सगरा यानी छोटा कलकला, कलकला कुबरा यानी बड़ा वाला कलकला। अब कलकला अकबर, ठीक है, जैसे हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, ठीक है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अकबर के माना क्या है, यानी सबसे बड़ा, ठीक है। तो कलकला अकबर यानी सबसे बड़ा कलकला, ठीक है। अब ये कलकला अकबर कब होगा, जब कलकला का हरफ लफ्ज़ के आखिर में आ जाए, ठीक है। कलकला का हरफ लफ्ज़ के आखिर में आ जाए और वो मुतहरिक भी हो और मुशद्दद भी हो, ठीक है। कलकला का हरफ लफ्ज़ के आखिर में आ जाए और वो मुतहरिक भी हो और मुशद्दद भी हो, ठीक है। तो वहाँ पर जो कलकला होगा वो कलकला अकबर होगा। कलकला अकबर यानी सबसे बड़ा वाला कलकला, ठीक है। अकबर कहते हैं सबसे बड़े को, ठीक है। तो कलकला अकबर कब होगा, जब कलकला का हरफ लफ्ज़ के आखिर में होगा, ठीक है। कलकला का हरफ लफ्ज़ के आखिर में आ जाए और वो मुतहरिक भी हो और मुशद्दद भी हो, ठीक है। और वो वक़्फ़ की वजह से उसके ऊपर जो हरकत होगी वो वक़्फ़ की वजह से साकिन हो जाएगी, ठीक है। यानी उसके ऊपर जो हरकत होगी ज़बर ज़ेर पेश होगी, दो ज़ेर दो पेश होगी, वो वक़्फ़ की वजह से क्या हो जाएगी, साकिन हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर जो कलकला होगा वो कलकला अकबर होगा, यानी सबसे बड़ा वाला कलकला होगा, ठीक है। जैसे हम कुरान के अंदर पढ़ते हैं वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, ठीक है। ये सूरह असर की आयत है, वतवासौ बिल हक़्क़ि, ठीक है। तो क़ाफ के नीचे ज़ेर है, जब हम यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे तो वक़्फ़ की वजह से क़ाफ के नीचे जो ज़ेर है वो साकिन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क़ाफ जो है वो कलकला का हरफ है, वो लफ्ज़ के आखिर में है, ठीक है, बिल हक़्क़ि, ठीक है, बिल हक़्क़ि कलकला का हरफ लफ्ज़ के आखिर में है और वो मुशद्दद भी है मुतहरिक भी है, ठीक है। वो मुतहरिक भी है और मुशद्दद भी है, ठीक है। अब इसके नीचे जो हरकत है वो जब हम वक़्फ़ करेंगे तो वो साकिन हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कलकला होगा कलकला अकबर होगा, यानी सबसे बड़ा वाला कलकला होगा, ठीक है। जैसे वतवासौ बिल हक़्क़ि वक़फ़न वतवासौ बिल हक़्क़ वतवासौ बिल हक़्क़ बिल हक़्क़ हक़्क़ वतवासौ बिल हक़्क़, ठीक है। तो अब यहाँ पर लफ्ज़ का आखिरी हरफ जो है वो क़ाफ है, कलकला का हरफ है, लफ्ज़ के आखिर में है, मुतहरिक भी है मुशद्दद भी है, ठीक है। हुरूफ कलकला है, कलकला का हरफ लफ्ज़ के आखिर में हो और वो मुतहरिक भी हो और मुशद्दद भी हो, ठीक है। तो वक़्फ़ की वजह से जो उसके ऊपर हरकत होगी वो वक़्फ़ की वजह से क्या हो जाएगी, साकिन हो जाएगी, ठीक है, साकिन हो जाएगी। अब वहाँ पर जो कलकला होगा कलकला अकबर होगा, यानी सबसे बड़ा वाला कलकला होगा, ठीक है। वतवासौ बिल हक़्क़ि वक़फ़न वतवासौ बिल हक़्क़, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें लफ्ज़ का आखिरी क़ाफ है बिल हक़्क़, उसके नीचे ज़ेर है, वो वक़्फ़ की वजह से साकिन हो रही है, ठीक है। कलकला का हरफ है, लफ्ज़ के आखिर में है, ठीक है, और मुशद्दद भी है मुतहरिक भी है, और हरकत जो उसके नीचे है ज़ेर वो वक़्फ़ की वजह से साकिन हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कौन सा कलकला करेंगे, कलकला अकबर करेंगे, यानी सबसे बड़ा वाला कलकला करेंगे, ठीक है, बिल हक़्क़, ठीक है।
فی الحج فی الحج وقفا فی الحج فی الحج فی الحج. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں لفظ کا آخری حرف جو ہے وہ کیا ہے؟ جیم ہے. ٹھیک ہے، جیم ہے، قلقلہ کا حرف ہے اور لفظ کے آخر میں ہے، مشدد بھی ہے، متحرک بھی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر جو حرکت ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو حرکت ہے وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی. اب یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ اکبر ہوگا، یعنی سب سے بڑا والا قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. فی الحج وقفا فی الحج فی الحج. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے قرآن کے اندر آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے، جہاں پر حروف قلقلہ جو ہوں گے لفظ کے آخری حرف پر ہوں گے اور وہ مشدد بھی ہوں گی اور متحرک بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، مشدد بھی ہوں گے اور متحرک بھی ہوں گے. اب ان کے اوپر جو حرکت ہوگی وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب ان کے اوپر جو حرکت ہوگی وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی، یعنی شد باقی رہے گی. ٹھیک ہے، یعنی ان کے اوپر جو قلقلہ ہوگا وہ سختی کے ساتھ بھی ہوگا اور اس کے اوپر جو حرکت ہوگی وہ ساکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ اکبر ہوگا، یعنی سب سے بڑا والا قلقلہ ہوگا، سختی کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے. لفظ کا آخری حرف جو ہوں گے وہ حروف قلقلہ ہوں گے. ٹھیک ہے. قلقلہ کا حرف لفظ کے آخر میں آ جائے اور وہ متحرک بھی ہو اور مشدد بھی ہو. ٹھیک ہے. اور وقف کی وجہ سے وہ ساکن ہو رہے ہوں، یعنی ان کے اوپر جو حرکات ہوگی وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو قلقلہ ہوگا قلقلہ اکبر ہوگا، یعنی سب سے بڑا والا قلقلہ ہوگا. جیسا سورۃ اللحم میں بھی ہے تبت یدا ابی لہب وتب وتب. ٹھیک ہے. ابھی یہاں پر لفظ کا آخری حرف با ہے. ٹھیک ہے. قلقلہ کا حرف لفظ کے آخر میں ہو. ٹھیک ہے، اور متحرک بھی ہو اور مشدد بھی ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں لفظ کا آخری حرف با ہے، وہ متحرک بھی ہے، مشدد بھی ہے، با کے اوپر زبر بھی ہے اور تشدید شد بھی ہے. اب جب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو با کے اوپر جو زبر ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ اکبر ہوگا، یعنی سب سے بڑا قلقلہ ہوگا. تبت یدا ابی لہب وتب وتب. ٹھیک ہے. وتب وقفا وتب وتب. ٹھیک ہے. ب ب یہ قلقلہ ہو رہا ہے، جنبش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لفظ کا آخر با ہے، وہ مشدد بھی ہے، متحرک بھی ہے. اب اس کے بعد جو حرکت ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی. اب یہاں پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ اکبر ہوگا، یعنی سب سے بڑا قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایسی قرآن کے اندر آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی جہاں پر لفظ کے آخری حرف پر حروف قلقلہ ہوں گے اور مشدد بھی ہوں گے اور متحرک بھی ہوں گی. ٹھیک ہے. لیکن وقف کی وجہ سے ان کے اوپر جو حرکت ہوگی، زبر زیر پیش ہوگی، دو زیر ہوگی، دو پیش والی تنوین ہوگی، وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب جو وہاں پر قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ اکبر ہوگا، یعنی سب سے بڑا والا قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس ہماری مختصر کلاس تھی جس میں آج ہم نے صفت قلقلہ کی 3 اقسام پڑھی. ٹھیک ہے. قلقلہ صغریٰ، نمبر 2 پر قلقلہ کبریٰ، نمبر 3 پر قلقلہ اکبر. ٹھیک ہے. تو یہ قلقلہ کی 3 قسمیں آج ہم نے پڑھی. تو مجھے امید ہے یہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی. تو اب ملیں گے دوسری کلاس میں، تب تک ہم کو دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.